फाइन स्टूडेंट। एथिक्स केस स्टडी। अब देखो ये केस स्टडी सेकंड होगा हम लोग का, फर्स्ट कर चुके हैं। जैसे कि जानते हो केस स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एथिक्स पेपर। ठीक है, क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी सॉल्व करना। ये हम लोग 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 2022 का। Rakesh was working as Joint Commissioner in Transport Department of a city. As a part of his job profile, among others, he was entrusted with the task of overseeing the control and functioning of City Transport Department. A case of strike by the drivers' union of City Transport Department over the issue of compensation to a driver who died on duty while driving the bus came up before him for decision in the matter. He gathered that the driver deceased was flying bus number 528, which passed through busy and congested road of the city. It so happened that near an intersection on the way, there was an accident involving the bus and a car driven by a middle-aged man. It was found that there was a altercation between the driver and the car driver. Heated arguments between them led to fight, and the driver gave him a blow. Lot of passerbys had gathered and tried to intervene, but without success. Eventually, both of them were badly injured and profusely bleeding and were taken to the nearby hospital. The driver succumbed to the injuries and could not be saved. The middle-aged driver's condition was also critical, but after a day, he recovered and was discharged. Police had immediately come at the spot of accident and FIR was registered. Police investigation revealed that the quarrel in question was started by the bus driver and he had resorted to physical violence. There was an exchange of blows between them. The City Transport Department management is considering of not giving any extra compensation to the driver deceased family. The family is very aggrieved, depressed and agitated against the discriminatory and non-sympathetic approach of the City Transport Department management. The bus driver deceased was 52 years of age, was survived by his wife and 2 school-college going daughters. He was the sole earner of the family. The City Transport Department Workers Union took up this case and found no favorable response from the management and decided to go on a strike. The union demand was twofold. First was full extra compensation as given to other drivers who died on duty, and secondly, employment to one family member. The strike has continued for 10 days and the deadlock remains. तो ये हो गया क्वेश्चन केस। होप से समझ में आ गया होगा, समझे। उसके बाद 4 क्वेश्चन हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू राकेश टू मीट द अबव सिचुएशन। सेकंड क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन ईच ऑफ द ऑप्शन आइडेंटिफाइड बाय राकेश। थर्ड क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर द एथिकल डायलेमास बीइंग फेस्ड बाय राकेश। एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज डी, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड राकेश अडॉप्ट टू डिफ्यूज द अबव सिचुएशन। तो यू शुड गिव आंसर इन 250 वर्ड्स। समझ गया ना। फॉर दैट यू विल गेट 20 मार्क्स। ठीक है, मैंने ये इंग्लिश में पढ़ दिया, यू विल रीड इन हिंदी। राकेश एक शहर के परिवहन विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। उनकी नौकरी प्रोफाइल के एक हिस्से के रूप में उन्हें नगर परिवहन विभाग के नियंत्रण और कामकाज की देखरेख का काम सौंपा गया था। नगर परिवहन विभाग के चालक संघ द्वारा बस चलाते समय ड्यूटी पर मारे गए चालक को मुआवजे के मुद्दे पर हड़ताल का मामला उनके सामने निर्णय के लिए आया था। उसने देखा कि मृत चालक बस संख्या 528 चला रहा था, जो शहर की व्यस्त और भीड़भाड़ वाली सड़कों पर गुजरती थी।
हुआ यूं कि रास्ते में एक चौराहा के पास एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही कार और बस की टक्कर में एक हादसा हो गया। पता चला कि बस और कार चालकों के बीच कहासुनी हुई थी। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और चालक ने उसे धक्का मार दिया। बहुत से राहगीरों इकट्ठा हो गए और उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए और बहुत खून बह रहा था, अतः उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया। हादसा में चालक ने दम तोड़ दिया और उसे बचाया नहीं जा सका। अधेड़ उम्र के चालक की भी हालत नाजुक थी, लेकिन एक दिन बाद वह संभल गया और उसे छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस जांच के सामने आया कि विवाद की शुरुआत बस चालक ने की थी और उसने शारीरिक हिंसा की थी। उनके बीच मारपीट हुई थी। नगर परिवहन विभाग प्रबंधन मृत चालक के परिवार को कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं देने के विचार कर रहा है। नगर परिवहन विभाग प्रबंधन के भेदभाव और गैर सहानुभूतिपूर्ण रवैये से परिवार बहुत व्यथित, उदास और आंदोलित है। मृत बस चालक की उम्र 52 वर्ष थी। उसके परिवार में पत्नी और स्कूल कॉलेज जाने वाली 2 बेटियां हैं। वह परिवार का इकलौता कमाने वाला था। नगर परिवहन विभाग वर्कर्स यूनियन ने इस मामले को उठाया और जब प्रबंधन से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यूनियन की मांग दोहरी थी। पहला, ड्यूटी के दौरान मरने वाले अन्य चालकों को दिया जाने वाला पूर्ण अतिरिक्त मुआवजा और दूसरी परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए। 10 दिन से हड़ताल जारी है और गतिरोध बना हुआ है। अब कुछ प्रश्न हैं इन्हीं से संबंधित। पहला प्रश्न है, उपयुक्त स्थिति से निपटने के लिए राकेश के पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? दूसरा प्रश्न है, राकेश द्वारा चिन्हित किए गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, वे कौन से नैतिक दुविधाएं हैं जिनका राकेश को सामना करना पड़ा है? और अंतिम प्रश्न है, उपयुक्त स्थिति को दूर करने के लिए राकेश क्या कार्रवाई करेंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें 250 शब्दों में देना है। ठीक। होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुझे क्वेश्चन समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया और इंग्लिश में भी बहुत स्पष्ट किया गया है। सो आई विल नॉट रिपीट इन वंस अगेन। ठीक है ना, ये आप समझ में आ गया। और यहाँ पे देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, बस क्वेश्चन को हिट करो, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पे जो भी केस स्टडीज़ हम सॉल्व करते हैं, हम एथिकल कंसर्न्स, एथिकल डायलेमा सब लिख रहे होते हैं। ये आपका क्वेश्चंस का खुद ही हिस्सा है। ठीक है, तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, व्हाट आर द ऑप्शन ए, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू राकेश टू मीट द अबव सिचुएशन? यानी कि राकेश पास क्या क्या विकल्प है ताकि जो भी सिचुएशन हुआ है उस सिचुएशन को वो डील कर सके। स्टेक होल्डर कुछ बताना नहीं है? हाँ, स्टेक होल्डर बता सकते। अच्छा, दिस क्वेश्चन की स्टार्ट मैंने इस तरह किया है। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज ऑफन सीन इन बिग सिटीज। तो स्टेक होल्डर इसमें कौन सा रहेगा? राकेश, विक्टिम का फैमिली, यूनियन ऑफ बस ड्राइवर, सिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट। ये स्टेक होल्डर हुआ। द ऑप्शन अवेलेबल फॉर द राकेश, देयर आर 4 मेजर ऑप्शंस जो मैंने इसमें दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि हम लोग जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन यूनियन के द्वारा बोल रहे हैं हम लोग उसको एग्री करते हैं। और सेकंड ऑप्शन है कि उस ऑप्शन को मतलब कि वो जितना भी मांग कर रहे हैं उसको हम डिनाई कर देते हैं। और थर्ड क्या है कि हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, विक्टिम के फैमिली से डायरेक्टली हम लोग बात अप्रोच कर सकते हैं। और फोर्थ क्या है कि हम लोग जितने भी यूनियन के लीडर है, क्योंकि एक नहीं होंगे, एक के और भी नीचे बहुत लीडर होंगे, तो उससे हम लोग डायरेक्ट कोऑपरेशन के लिए मांग कर सकते हैं। तो ये मेरा 4 स्टेप है जिसको हम लोग आगे भी मतलब ये 4, और इसमें कभी मेरिट एंड डिमेरिट दोनों ही है। ये चीज़ को हम लोग सेकंड क्वेश्चन में डील करेंगे। नहीं, ऑप्शंस, अच्छा ये ऑप्शंस, हाँ ये ऑप्शन इसका मेरिट्स डिमेरिट्स अच्छा, आपने बोले हो? नहीं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में वही है। एग्जामिन, क्रिटिकल एग्जामिन ईच ऑफ द ऑप्शन आइडेंटिफाइड बाय राकेश। यस सर, ठीक है, ये पढ़ दो तो। यस सर। जैसे कि ऑप्शन 1 में क्या था कि हम लोग उसका बात मान लेते हैं, तो इससे मेरिट क्या हुआ? केस एक के बार में खत्म, जो मांग किया हम करेंगे, काम खत्म, केस वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा, जितना भी हड़ताल था वो भी बंद हो जाएगा। पर इससे
डिमेरिट क्या होगा, फिनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा आगे के दिन में भी कभी भी होगा। सबसे पहले डिपार्टमेंट यूनियन जितना कुछ भी होगा डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर ही फाइनेंशियल बर्डन डाल देंगे, इस एक डिमेरिट है। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि नॉट एक्सेप्टिंग, अगर हम लोग उस मांग को एक्सेप्ट नहीं करते, उसका फर्स्ट मेरिट क्या है, इससे क्या होगा, बर्डन खत्म हो जाएगा, हम लोग पैसा नहीं दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और जिसका डिमेरिट क्या होगा, मोर वायलेंस एंड एजिटेशन देखने को मिल सकता है सड़कों पे। और थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट टॉक विद फैमिली विक्टिम्स फैमिली, इसका मेरिट देखते हैं। अगर हम लोग फैमिली से डायरेक्टली बात करें तो इससे एक उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, इट विल एम्पैथी और सिंपैथी भी दिखेगा कि डायरेक्ट हम लोग उससे बात कर रहे हैं, और भी जो भी मांग है हम लोग उसको और अच्छे से कटल कर सकें, मतलब और अच्छे से उसको मांग पूरा कर सकते हैं। और इसका डिमेरिट क्या है कि अगर हम लोग करते हैं फिर भी लोगों को लगेगा पर्दे के पीछे कुछ करप्शन हो रहा है, इसका एक डिमेरिट भी ये दिख सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर हम लोग डायरेक्टली फैमिली से ही बात कर रहे हैं तो लोगों के अंदर वो डिमेरिट, और इसमें एक प्रॉब्लम और होने का चांस रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले ही तय किया कि उसको हम लोग नहीं देंगे पैसा, हम लोग विक्टिम फैमिली को नहीं देंगे, तो इसमें कन्फ्लिक्ट राकेश और मैनेजमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होने का चांस है इस अगर ये स्टेप लेते हैं तो। अब फोर्थ स्टेप, अगर सीक कॉपरेशन विद यूनियन लीडर्स, अगर ये स्टेप हम लोग करते हैं तो इसमें फर्स्ट मेरिट क्या है कि हम लोग केस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, मीन्स केस को, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है वहाँ यूनियन लीडर को हम लोग कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं तो अच्छे से एजिटेशन को खत्म किया जा सकता है, एक मेरिट हो गया। इसका फिर डिमेरिट क्या होगा, एजिटेशन लेने के बाद भी अगर उसका मांग तो हमको पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे दोनों तरफ से ही करना पड़ेगा, तो इसमें भी डिमेरिट है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ मांगना, मतलब कुछ मांग पूरा करना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग फिनेंशियल बर्डन हो सकता है। और इसमें भी डिमेरिट सबसे फर्स्ट क्या होगा, राकेश और उसके मैनेजमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होने का हाई चांस है। ठीक है, यस, चलो सीवी पर। सेकेंड एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा मेरे हिसाब से दो इसमें मुझे दिखा, जैसे कि फर्स्ट है ह्यूमैनिटी वर्सेस प्रोफेशन। जैसे कि हम लोग, जैसे एक्सीडेंट हुआ है, अब बोल रहे हैं सोल ब्रेड ऑनर था वो घर का, तो अगर वो खुद ही खत्म हो गया तो अब इधर वो को अर्निंग करने वाला कोई है ना। हम ह्यूमैनिटी को देखिए अपना प्रोफेशन, क्योंकि उसका प्रोफेशन क्या कहता है, हाई इंटीग्रिटी इन द जॉब, क्योंकि अगर अपना इंटीग्रिटी को पूरा निभाता है तो ह्यूमैनिटी को खो देगा, अगर ह्यूमैनिटी को निभाता है तो अपना इंटीग्रिटी खोएगा, और इंटीग्रिटी को निभाता है तो ह्यूमैनिटी खत्म, मतलब दोनों में हो रहा है। और सेकंड क्या है, ओन डिपार्टमेंट, अगर अपना डिपार्टमेंट को देखे या पब्लिक ग्रीवांसेस देखे, क्योंकि डिपार्टमेंट और भी बहुत सोच के थे, तो ये दो मेरे हिसाब से एथिकल डायलेमा था सर। थर्ड लास्ट क्वेश्चन पर दीजिए। सी क्वेश्चन था, व्हाट आर द एथिकल डायलेमास बीइंग फेस्ड बाय राकेश, ये बता चुके हो तो। फोर्थ डी, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड राकेश अडॉप्ट टू डिफ्यूज द अबव सिचुएशन। राकेश शुड अडॉप्ट द मिडल पार्ट टू रिजॉल्व द केस। द मिडल पार्ट इज इंस्टेड ऑफ कंपेंसेशन विक्टिम्स फैमिली, क्योंकि दो बात हो रहा है कि विक्टिम फैमिली को कंपनसेशन दो और एक जॉब भी दो, तो मेरे हिसाब से उसको जॉब दे दो, क्या कंपनसेशन कोई देने की जरूरत नहीं है। और सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, मेक श्योर इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज इन फ्यूचर देन देयर विल बी स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब एक्शन लिया जाएगा कि उसके अगर इस तरह से अगर चलता रहा तो कोई भी किसी का भी एक्सीडेंट होगा डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगे, तो उसका एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाया जाए कि कल के दिन में ऐसा होता है तो तुम मतलब जो भी हो रहा है तो उस पर भी एक एक्शन लिया जा सकता है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबको लाइफ इंश्योरेंस शुड बी मेड कंपलसरी फॉर द ऑल द ड्राइवर्स, जितना भी ड्राइवर है सबका लाइफ इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस रहता तो यहाँ पे कंपनसेशन का बात ही नहीं होता। अब फोर्थ क्या है कि स्ट्रिक्ट, क्योंकि अभी जो भी एक्सीडेंट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, तो उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी फिजिबल सोल्यूशन। चलो तो क्या क्या ऑप्शन है राकेश के पास सिचुएशन को डील करने के लिए? राकेश के पास मेरे अनुसार मुख्यतः 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला कि उनके मांगों को पूरा कर देना, दूसरा जो सॉल्यूशन है उनकी सीधा नकार देना, बलपूर्वक हो या समझा के जैसे भी हो, और तीसरा है कि मध्यस्थता का रुख लेना, जिसमें कि जिसके और भी सब पार्ट हो सकते हैं मध्यस्थता की। सब पार्ट में आप देख सकते हैं कि यूनियन डिपार्टमेंट से, मतलब यूनियन से बात करना, ड्राइवर यूनियन से, या फैमिली से बात करना, या अपने डिपार्टमेंट से बात करना, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसमें थर्ड वाला जो है उसमें देखा गया कि अतिरिक्त ये जो डिमांड कर रहे हैं अतिरिक्त मुआवजा का बात कर रहे हैं। मुआवजा तो मिलता ही है अगर डेथ होता है, तो अतिरिक्त मुआवजा का बात कर रहे हैं। अतिरिक्त मुआवजा पे डिपार्टमेंट जो है वो सोच रही है ना देने का, ना कि मुआवजा तो देने का बात हो रहा है, लेकिन अतिरिक्त मुआवजा का बात इसमें चल रहा है। तो ये 3 ऑप्शन है
और सर अगला क्वेश्चन। Correct. What are the options? You critically examine each of the options identified by यस Rakesh. सर। पहला का अगर हम देखते हैं, जो अगर हम स्वीकार कर लेते हैं उनका सारे डिमांडों को, तो उसका डिमेरिट क्या है? डिमेरिट इसका ये है कि हम लोग का फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा, हम लोग का जो डिपार्टमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा। इसका मेरिट ये होगा कि संतुष्टि मिल जाएगा जनता में, साथ ही साथ यूनियन में। इसका मेरिट ये है। डिमेरिट एक और इसका ये हो सकता है कि इस प्रकार अगर सब डिमांडों को पूरा करता गया डिपार्टमेंट यूनियन का, तो यूनियन का एक वर्चस्व बढ़ता चला जाएगा डिपार्टमेंट। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है, जो कि भविष्य में अगले दिनों में बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। और सेकेंड है कि अगर हम फोर्सफुल्ली अगर उसको स्टॉप कर देते हैं उस प्रोटेस्ट को, तो उसका डिमेरिट क्या हो जाएगा? असंतुष्टि का भाव यूनियन में। दूसरा कि लोगों में व्याप्त का एक संरचना चलेगा कि सरकार ने एक या डिपार्टमेंट ने एक निहित अनिहित कार्य किया। तीसरा जो मुझे लगता है कि ये गैर संवैधानिक होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट करने का हक है लेकिन एक लिमिटेड वे में, ये भी एक गैर संवैधानिक हो जाए। इसलिए ये इसमें ज़्यादा डिमेरिट ही है। मेरिट बस एक ही है कि हम लोग का जो डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल थोड़ा बचेगा, स्ट्रेंथ बनेगा, बस। और कोई इसमें ज़्यादा मेरिट नहीं दिख रहा। और जो सबसे वायबल सॉल्यूशन जो है वो है मध्यस्थता का रुख लेना। मध्यस्थता का रुख में क्या होगा कि एग्जामिन का इसका मेरिट क्या होगा? मध्यस्थता में होगा कि दोनों पक्ष, जो कि हमारा डिपार्टमेंट है और प्लस जो आपका ये है क्या कहता है यूनियन संघ या परिवार, दोनों में एक अच्छा माहौल बनेगा। तीसरा और उस डिमेरिट इसमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा लॉस हो रहा है, बस उसका सर। उसके बाद व्हाट आर द एथिकल डायलेमास बीइंग फेस्ड बाय राकेश? इथिकल डायलेमा सर, इथिकल डायलेमा हमको इसमें लगा जैसा कि जस्टिस वर्सेस वर्क एथिक्स, कि उसको जस्टिस दे कि जो हमारा काम है, क्योंकि जस्टिस देना अनिवार्य, क्योंकि वो एक मुख्य स्रोत थे आय के जो मर चुके हैं। और दूसरा कि हम लोग जो जस्टिस जो प्रॉपर वर्क है वो करे, एक थोड़ा सा यह है। दूसरा है इकोनॉमी ऑफ फैमिली वर्सेस वेल्थ ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स अगर हम पैसा दे देते हैं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वेल्थ चला जाएगा। तीसरा मुझे लगा ट्रांसपेरेंसी वर्सेस सिंपैथी या कह सकते हैं अनट्रांसपेरेंसी। जैसे कि अगर हम चुपचाप बात करते हैं परिवार वालों से या संघ से, तो इसमें एक हो जाता है ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाता है, लोगों के बीच बात नहीं जाएगा। इससे लोगों के बीच हो सकता है कि लोग समझ ले कि एक सरकार और दोनों मिलके एक नेक्सस बना लिए और मैटर को सॉर्ट आउट कर लिए। इसमें एक डायलेमा मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, और यही डायलेमा है। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड राकेश सेट अप टू डिफ्यूज द अबव सिचुएशन? तो हम लोग जैसे ही बता दिए थे कि जो मध्यस्थता का जो मार्ग है वो हम लोग पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा, तो प्राथमिक हम लोग का उद्देश्य मतलब क्या होना चाहिए? 10 दिनों से परिवहन बंद है, तो सबसे पहले परिवहन को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। यूनियन से बात होगी, यूनियन से अब क्योंकि एक प्रोविज़न तो होता ही है कि अगर किस तरह का दुर्घटना होता है कार्य पे, तो उन्हें कंपनसेशन मिलेगा सरकारी कार्य में। तो ये उन्हें इन लोग का बात था एक्स्ट्रा कंपनसेशन का और नौकरी का। तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं? जो कि लड़ाई किया, मतलब एक अर्धवयस्क व्यक्ति, वो भी उतना थोड़ा बड़ा कल्प्रिट है, तो उसको पुलिस अपना देखेगी, उसमें हम लोग को कुछ नहीं कर। मेन जो आता है कि इसको नौकरी देना या पैसा, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें 3 ऑप्शन हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर वो लोग राजी हो जाते हैं कंपनसेशन के अलावा अधिक राशि पे, तो राशि देंगे, लेकिन उन्हें एक टुकड़े के फॉर्म में, जैसे कि हम पे भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े और उन पे भी ना पड़े। या हम क्या करेंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाएं। बहुत अच्छा। दूसरा या एक और है कि जब उनका बच्चा पढ़ ले तो जो डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी का एग्ज़ाम उससे दिलवाए और उस वैकेंसी में उनको कुछ रिजर्वेशन दे दे, क्योंकि उनके साथ विगत दिनों में ऐसा कुछ हुआ था, जिससे कि दोनों चीज़ खत्म हो जाएगा। अगर रिजर्वेशन दे देते हैं तो इनका जो मांग था एक कि बच्चा को किसी को नौकरी मिले परिवारजनों को, तो वही पूरा हो जाएगा और एक बर्डन भी नहीं बनेगा। इससे क्या है कि सीधा मार्ग पे चला जाए। और आने वाले दिनों में इसको कैसे टाला जाए? आने वाले दिनों में ऐसा टाला जाए कि हाई ट्रैकिंग हो पुलिस का पूरा सड़कों पे, कि किसी तरह का फाइट ज़्यादा ना हो, खास करके भीड़ वाले इलाकों में। और जो जैसे कि और एक तो इंश्योर करवा लेंगे कि सबका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, ड्राइवर का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, ड्राइवर एक लिमिट बिना शराब किए या किसी के बिना नशे के चलावे। और तीसरा सबसे मुख्य होना चाहिए ड्राइवर के लिए कि किसी तरह के उलझन में ना पड़े पहले, और वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे, अगर कोई लड़ाई हो खुद ना भिड़े। जिस प्रकार इसमें देखा गया कि धक्का मुक्की
प्राथमिक दौर से इसी के द्वारा किया गया था। इसलिए इन सब कारणों से क्या हुआ कि और क्या करेंगे, फॉर्मल मीटिंग रखेंगे यूनियन के साथ, अगर सॉल्व हो जाता मैटर तब यूनियन के साथ फॉर्मल मीटिंग रखा जाए, उसमें कहा जाएगा कि यूनियन को कि आपका जो वर्चस्व इतना बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, नहीं तो अन्य दिनों में आपको निष्कासित भी कर दिया जाएगा अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं। और साथ ही साथ उनको हिदायत दे दिया जाएगा कि आप लोग का जो कार्य है उस कार्य को करें, अगर कोई तरह का गतिविधि जो गलत हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे। इन कारणों से ये भी वो सेक्शंस भी यूनियन भी सही हो जाएंगे, यूनियन ऑफ ड्राइवर भी अच्छे रहेंगे, फैमिली मेम्बर भी अच्छे रहेंगे, और कम से कम मिनिमम हार्म हम लोग को पहुंचेगा। यूटिलिटेरियन अप्रोच करते हुए सब कुछ लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा सलूशन दिया है तुम दोनों ने, बहुत अच्छा, ये कंप्लीट आंसर दिए हो, अच्छे से किए हो। हाँ, जैसे देखो मिडल पाथ नहीं, दो डिमांड है, एक तो एक्स्ट्रा कंपनसेशन का एंड सेकेंड वन कि एक एम्प्लॉयमेंट टू एनी वन फैमिली मेम्बर। जैसे कि इसने कहा है कि एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा कंपनसेशन मतलब एक्स्ट्रा बर्डन ऑन फाइनेंशियल एक्सचेकर, वो दे देंगे फिर नेगेटिव चला जाएगा, फिर नेगेटिव मैसेज चला जाएगा। तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करके ना हम ये रिजर्वेशन का काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है कि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, दोनों कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको कंप्लीट करवा देते हैं। और ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा चीज़ भी है नहीं। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट उसके लिए रिजर्वेशन रख देंगे साइड में, तो बेटर सोल्यूशन है। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोग का, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है ये, क्योंकि दोनों ही डिमांड पूरा कर लोगे तो आने वाले भविष्य में ना फिर सिमिलर डिमांड उठेगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लाइफ इंश्योरेंस करवा दो, तो यदि लाइफ इंश्योरेंस होता ड्राइवर का तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता, पहले ही सॉल्व हो जाता। हाँ, इसलिए ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन उसको ठीक से इन्फोर्स करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। और एक ये भी हो सकता था ऑप्शन कि हम जॉइंट कमिश्नर है, राकेश क्या है, जॉइंट कमिश्नर है, चलो आई नहीं दिया गया, चलो ठीक है, राकेश जॉइंट कमिश्नर है, ये इशू कमिश्नर को भी भेजा जा सकता है और स्टेक होल्डर बढ़ाए जा सकते हैं इसमें, तो कमिश्नर भी अपना फीडबैक देगा। हाँ, इसका हो सकता है वो इससे, ये जॉइंट कमिश्नर है, राकेश जॉइंट कमिश्नर है, तो कमिश्नर को तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इनसे, तो वो भी एक पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। एट द सेम टाइम इसका डिमेरिट्स ये हो सकता है कमिश्नर ये सोचे कि राकेश जॉइंट कमिश्नर होने के बाद भी केस को अकेला डील नहीं कर सकता है, ये भी हो सकता है लिमिटेशन। चौथा ऑप्शन के रूप में, हाँ, चौथा ऑप्शन के रूप में ये भी हो सकता है कि केस को रिफ़र कर दिया जाए ऊपर, ताकि फीडबैक सिस्टम, थोड़ा फीडबैक वहाँ से भी लिया जा सके। बट ठीक है, तुम दोनों ने ही बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। यस, कंप्लीटेड।